بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم سب سے پہلے میں آپ تمام صحافی دوستوں کو عید مبارک کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی رمضان شریف کی عبادات کو قبول فرمائے۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے مجھے موقع دیا اور ایک طویل عرصے کے بعد ہم ایک بار پھر ڈیرہ اسماعیل خان میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ یقیناً یہاں جو سب سے بڑا حساس معاملہ ہے وہ یہاں کے امن و امان کا ہے۔ ٹانک ہو، وزیرستان ہو، ڈیرہ اسماعیل خان ہو، لکی مروت ہو، بنو ہو، دیہاتی علاقے جو ہیں وہ خالی ہو رہے ہیں اور آباد لوگ وہاں سے ہجرت کر رہے ہیں اس بات کے لیے کہ وہ ان کی زندگیاں محفوظ نہیں ہیں، اور حکومتی رٹ کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ پھر جہاں حکومت اس ساری صورتحال سے نمٹنے میں کامیاب نظر نہیں آ رہی، وہاں پاکستان مشرقی سرحد پر بھی اور مغربی سرحد پر بھی جنگ میں الجھ گیا ہے، جس سے ملک محصور ہو گیا ہے۔ چین بھی پاکستان سے مطمئن نہیں ہے۔ ہم نے چین کی پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا ہے۔ ایران بھی اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ پاکستان کے کسی کام آ سکے یا ہمارے ساتھ کوئی تجارت کر سکے، معاملات کر سکے۔ اس لیے میری نظر میں اب یہ کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں رہا کہ ہم صرف تنقید کر کے خود کو ذمہ داری سے عہدہ برا کر سکیں، کسی ایک پارٹی کو اس کا ہم ذمہ دار ٹھہرا سکیں۔ یہ قومی مسئلہ ہے اب، اور ہم یہ تجویز دے چکے ہیں پارلیمنٹ کے فلور پہ کہ ایک پارلیمنٹ کا ان کیمرہ اجلاس ہو جس میں عوام کے اس نمائندہ ادارے کو حالات سے آگاہ کیا جائے، پاکستان کہاں کھڑا ہے یہ واضح کیا جائے، اور پھر قومی مشاورت کے ساتھ اس مشکل سے نکلنے کے لیے راہ نکالی جائے۔ پاکستان اس وقت بمقابلہ ہندوستان کے، پاکستان بمقابلہ افغانستان کے، پاکستان چائنا تعلقات، پاکستان امریکہ تعلقات، اسرائیل کے حوالے سے پاکستان کہاں کھڑا ہے، فلسطین کے مسئلے پر پاکستان کہاں کھڑا ہے، عرب ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، آج عرب کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اس سارے بین الاقوامی اور علاقائی صورتحال میں ہمیں اپنے ملک کی پوزیشن کو واضح کرنا ہے۔ ہم بڑے مبہم حالات میں جا رہے ہیں اور کوئی واضح پالیسی اختیار کرنے کی ہم پوزیشن میں نہیں ہیں۔ سو وہاں بھی ہماری سوچ یہ ہے کہ چاہے عرب دنیا کی 1 صدی کی ماضی ہو یا 50 سال کی ماضی ہو، جس طرح انہوں نے اپنی سیاست، اپنی معیشت، اپنی سفارت کا انحصار امریکہ اور مغربی دنیا پر کیا،
اور جس طرح تحفظ کے نام پر اور تحفظ کی امکان پر امریکہ کو اور یورپ کو ہم نے اڈے دیے، سمندریں ان کے حوالے کر دی، ہر طرف ان کے بحری بیڑے کھڑے ہیں، اس خیال کے ساتھ کہ یہ اس خطے کے لیے امن اور تحفظ کا سبب بنیں گے، آج وہ وہاں کی بد امنی کا ذریعہ بن گئے۔ اسلامی دنیا نے کیا کمایا ہے؟ افغانستان میں 50-55 سالوں سے مسلسل جنگ اور بین الاقوامی قوت افغانستان میں دخیل، عراق کا کیا بنا، لیبیا کا کیا بنا، آج ایران کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ایک ایک کو تنہا کر کے اور ان کے مقابلے میں مسلم دنیا کو لا کر آج جن نتائج کے ساتھ ہمیں لا کھڑا کیا جا رہا ہے، اس پر اسلامی برادری کو اثر نو سوچنا چاہیے۔ اسلامی کانفرنس ہونی چاہیے اور ماضی کے بین الاقوامی تعلقات پر نظر رکھنا چاہیے، ہمیں ایک اسلامک بلاک کی طرف جانا چاہیے۔ اسلامی دنیا کے درمیان سیاسی تعلقات، اسلامی دنیا کے درمیان معاشی تعلقات، تجارتی روابط اور اسلامی دنیا کے درمیان ایک دفاعی معاہدات، اس کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔ ہماری جو باہمی تقسیم ہے کم از کم آج اسلامی دنیا کی سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ جب سے ایران کے ساتھ جنگ شروع ہوئی ہے، عرب دنیا میں وہاں پر امریکیوں کے یا یورپ کے اڈوں پر حملوں کے باوجود عرب دنیا، اسلامی دنیا تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ وہ جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتی، وہ اس کو جذباتی طور پر نہیں لے رہے۔ یہ ایک بین الاقوامی سطح پر اسلامی دنیا کی سوچ میں ایک تبدیلی ہے، اور یہ بنیاد بننی چاہیے کہ ہم اگلے مستقبل کے لیے اسلامی دنیا کے حوالے سے سوچیں، مسلم برادری کے حوالے سے سوچیں، اسلامی دنیا کے مفادات کے حوالے سے سوچیں، اور اپنے مفادات پہ ہم اشتراک پیدا کر کے اس کے لیے مشترکہ حکمت عملی اپنائیں۔ یہ اس وقت ہمارا ایک پیغام ہے اسلامی دنیا کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی، پاکستان کی ریاست کے لیے بھی، اور یہ کہ حالات کے تقاضے کیا ہیں انہیں سمجھنا چاہیے۔ بند کمروں میں فیصلے کرنا، عوام بے خبر رہنا، عوام میں عدم اطمینان رہنا، یہ شاید اچھی بات نہ ہو۔ ہمیں ہر سطح پر عوام کو اعتماد میں رکھنا ہوگا۔ افغانستان کے حوالے سے ماضی میں بھٹو کے دور میں، شاہ فیصل کے دور میں ایک یونٹی کا اتحاد کیا گیا تھا، سربراہ کانفرنس طلب کی گئی تھی، اس کے نتائج ہم نے دیکھے ہیں کہ پھر ان کو چن کر علیحدہ کر کے نشان عبرت بنایا گیا۔ تو کیا اب ہم متحمل ہو سکتے ہیں دوبارہ سب کچھ یکجا کرنے کی؟ میرے خیال میں اب صورتحال وہ نہیں ہے۔ اب امریکہ سپر طاقت نہیں رہا ہے، وہ اپنا ایک بھرم رکھنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہے، بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید ٹرمپ اپنے ذاتی دفاع کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے، امریکہ کی دفاع کے لیے بھی نہیں کر رہا۔ اور وہاں پر اس وقت امریکہ کے عوامی تائید بھی اس وقت حاصل نہیں ہے۔ بڑا سوال یہ ہے کہ جس شخص نے الیکشن لڑا کہ دنیا سے جنگ ختم کروں گا، اس نے اقتدار میں آ کر دنیا پر جنگ مسلط کر دی ہے۔ یہ خود امریکیوں کے اور امریکی عوام کی نظر میں بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس وقت پوری دنیا اثر نو سوچ رہی ہے، اور ظاہر ہے سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ عالمی تبدیلی اور تغیرات آئیں گی۔ اس وقت پوری دنیا امریکہ سے لے کر روس تک اور چین تک یہ عالمی تغیرات کی زد میں ہیں، اور ہمیں خود بیٹھ کر خود اعتمادی کے ساتھ اپنے مستقبل کو خود تراشنا ہوگا۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران، اسرائیل اور امریکی جنگ میں پاکستان کا جو کردار ہے وہ غیر واضح ہے، حالانکہ ثالثی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا واقعی پاکستان کوئی ثالثی کا کردار ادا کرنے جا رہا ہے؟ ہمیں یہی سوال ہے کہ اس وقت ثالثی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ثالثی کر سکے؟ اور شہباز شریف جیسے حکمران کے ٹویٹ پر
ट्रंप का ट्वीट आना खुद ट्रंप की कमज़ोरी और अमरीकी पॉलिसी की कमज़ोरी की अक्कास है। सो हमारी ताकत का आकाश नहीं है। इस हवाले से हमें सोचना चाहिए, नहीं, पाकिस्तान बहरहाल मुहासरे में है और सिवाय सालिसी के किरदार के हमारे पास और कौन सा रास्ता है। मौलाना साहब, ये अफगानिस्तान के हवाले से दो मुतज़ाद बयान पाकिस्तान की तरफ है। केपी गवर्नमेंट एक तरफ ठहरी होती है, वफाकी हुकूमत के बयान होते हैं, किरदार होता है। ये 70 सालों से अफगानिस्तान पॉलिसी क्यों नहीं बना सके? वाज़ेह तौर पर क्या मशवरा देंगे, क्या इस हवाले से आप? जब तक हमारे दिमाग से ये कीड़ा नहीं निकलेगा कि हमने अफगानिस्तान को ज़ेर नगीर रखना है और अफगानिस्तान में कोई हुकूमत वो हमारी मर्जी के बगैर नहीं चलेगी, उस वक्त तक मामला ठीक नहीं हो सकते। हमें एक आज़ाद अफ़गानिस्तान, एक साहिब इस्तिक़लाल अफ़गानिस्तान, एक ख़ुद मुख्तार अफ़गानिस्तान, उस पर तवज्जो रखनी चाहिए और माजी के जो हमारे इस हवाले से कुर्बानियाँ हैं उनको किसी एक कामयाब नताइज तक हमें पहुँचाना चाहिए। हम ये समझते हैं कि अफ़गानिस्तान में सफारती जो हमारी 70 साल या 78 साल कोशिशें हैं वो अब तक क्यों नाकाम हैं, ये मुस्तकिल एक सवाल है। ये काफ़ी नहीं है, हमने बड़ी कोशिश की और अफ़गानी नहीं मानते और हमने बड़ी कोशिश की और अफ़गानी नहीं मानते। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि क्यों नहीं मानते। क्या सारी गलतियाँ 70 साल से उन्हीं की तरफ हैं और क्या हमारी तरफ बिल्कुल कोई गलती नहीं है? ये भी हमें कौमी सतह पर सोचना चाहिए। अफ़गानिस्तान सिर्फ हुकूमत का नाम नहीं है, अफ़गानिस्तान सिर्फ वहाँ अमारत इस्लामिया का नाम नहीं है, अफ़गानिस्तान वहाँ के अवाम का भी नाम है, अफ़गान कौम का नाम है। अफ़गान कौम के हमारे साथ रिश्ते हैं, हमारे साथ उनके ताल्लुकात हैं, हमारे साथ उनकी बिरादरियाँ शरीक हैं और हमारे साथ उनकी मुआशरत शरीक है। इन तमाम रिश्तों को सामने रखते हुए हमें अफ़गानिस्तान के हवाले से सोचना चाहिए। ये हर वक्त रजीम चेंज और रजीम चेंज और रजीम चेंज की बातें, ये शायद न ख़त्म होने वाला सिलसिला बने। ज़ाहिर शाह के ख़िलाफ़ हमने इनकलाब की हिमायत की, फिर उसके बाद कम्युनिस्ट इनकलाब आया और हमने उनके ख़िलाफ़ जिहाद, उस वक्त हम अमेरिका जब आया तो हम भी दाखिल शामिल हो गए। फिर वही अमेरिका था, उसने तरफ तब्दील कर दिया तो मुशर्रफ के ज़माने में हम फिर अमेरिका की जंग लड़ रहे थे। आज हम फिर एक दफ़ा अमेरिका की ख्वाहिशात के मुताबिक, ये कैसा अमेरिका है कि पाकिस्तान की अगर इंडिया से लड़ाई हो तो क्रेडिट लेता है कि मैंने जंग बंद करा दी, और अगर अफ़गानिस्तान के साथ लड़ाई हो जाए तो कहते हैं पाकिस्तान ठीक जा रहा है, उसको और करना चाहिए। तो ये चीज़ें उनकी बदनीयती पर दलालत करती है और हमें किसी के ट्रैप पे नहीं आना चाहिए। वो अब खुद ट्रैप पे आ चुके हैं, फंसे हुए हैं, मुश्किलात का शिकार हैं और वो कामयाबियाँ हासिल नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान को हर कदम एहतियात से उठाना चाहिए और पार्लियामेंट को एतमाद देना चाहिए। इस्लामी दुनिया के हवाले से आपका बहुत अपना ज़ाती भी असर तो बहुत ज़्यादा है अरब ममालिक में, इस्लामी दुनिया में, तो क्या इनको यकजा करने के हवाले से, इस हवाले से आप कोई सफारतकारी करते हैं? देखिए, सफारतकारी हुकूमतों का काम है, रियासतों का काम है, पार्टियों का काम नहीं होता है। हम पब्लिक टू पब्लिक रिलेशंस जो है उसमें मदद दे सकते हैं। अवाम, हम सब मुसलमान हैं, हम सब भाई भाई हैं, हम एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन अवाम की ज़रूरतों और ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए रियासतें फ़ैसला करें, बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों के ताबे फ़ैसले न करें, अपने मुल्क के अवाम की ख्वाहिशात और उनकी ज़रूरतों के ताबे फ़ैसले करें। मौलाना साहब, ये जो सारी सूरत हाल है, जिस तरह से आपने उसको एक ब्रीफ किया है, आज वज़ीर आज़म साहब ने, जो इत्तेहादी एक मेन पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके बड़े हैं, उनसे मुलाकात की, उनको एतमाद भी लिया शायद, और कराची का उन्होंने विजिट भी किया शायद उनको भी। आप समझते हैं कि एज अ होल अपोजिशन को साथ शामिल न करना या आप अपोजिशन में ही बैठे में, तो क्या ये किसी खास पॉलिसी का हिस्सा है या अमेरिका की तरफ से भी कि इस मामले को ज़्यादा हवा ना दी जाए और मामला जो है वो अंदरून खाना एक महदूद इसमें किए जाएं? क्या आप समझते हैं कि इसमें क्या पस मंज़र क्या है? देखिए, पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून या MQM, सब इस बात के दावेदार हैं कि हमारी हुकूमत है और मुश्तरका हुकूमत है। गो के
बीच में कुछ कभी कभी तहफ़्फ़ुज़ात भी आ जाते हैं, लेकिन वो अपने इसको एक मुश्तरका हुकूमत कहते हैं। क्या ज़रूरत है कि आज फ़ौजी क़यादत की मौजूदगी में दोनों पार्टियों की क़यादत की बाहमी नशिस्त की ज़रूरत पड़ गई। मैं सोचता हूँ ये काफ़ी नहीं है, ये कुछ और इशारात दे रही है, मनफी इशारात की तरफ ज़्यादा शायद मामलात जाएँ। ज़रूरत इस अमेरिका की पूरे पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए, और जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म ने भी उम्मीद दिलाई थी हमें कि मैं इस पर गौर करके फिर फैसला करता हूँ, लेकिन अभी तक वो फैसला करने के पोजीशन में नहीं आए। इस पर जल्दी फैसला हमें करना चाहिए। गुरु साहब, ये बताइएगा कि पाक अफगान तनाज़े के हल के लिए आप मुज़ाकरात के हामी नजर आते हैं, जबकि ऐसी जमातें जिन्हें रियासत कलअदम करार दे चुकी है, ख़ुसूसन मैं TTP के हवाले से बात करूँगा, क्या उनसे भी मुज़ाकरात होने चाहिए? देखिए, उनसे मुज़ाकरात होने या न होने के सवाल से पहले हमें ये देखना है कि अफ़गान पाकिस्तान ताल्लुकात के बीच में हायल चीज़ क्या है, तो हम उसको बराह रास्त मुज़ाकरात का हिस्सा बनाएं या न बनाएं, लेकिन उसको एड्रेस करना पड़ेगा। उसको एड्रेस किए बग़ैर अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात मामूल पर आने में शायद दिक्कतें होंगी। तो अब उसको किस लेवल पे एड्रेस किया जाता है वो अपनी जगह पर एक सवाल है। स्मार्ट लॉकडाउन जो लगाया जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा, आप इसको कैसे देखते हैं? स्मार्ट लॉकडाउन, देखिए, बात यह है कि ये जो इस वक्त जंग है और जिसमें उन्होंने अपना हुर्मुज़ को बंद कर दिया है, इसने खुद अमेरिका को भी और पूरी दुनिया को भी मुश्किल में डाल दिया है। अब जाहिर है कि ये वो रास्ता है कि जिससे जनूबी एशिया, मशरक़ी एशिया के तेल की रसद का रास्ता है जो बुरी तरह मुतासर हुआ है। तज़ाद इसको कहते हैं कि कहीं कभी तो अमेरिका इंडिया के टैरिफ में इस बात पर इजाफा करता है कि तुम रूस से तेल क्यों ले रहे हो, और अगर तुम रूस के ख़रीदार बनते हो तो फिर आप पर हम टैक्स बढ़ाएंगे, टैरिफ में इजाफा करेंगे। और या वो दिन आ गए हैं कि अमेरिका खुद इंडिया से कह रहा है कि आप रूस से तेल लें। तो इसी से अंदाज़ा लगाएं कि किस कदर कमजोरी आ गई हैं आलमी सतह पर। अमरीकी अड्डों के होते हुए चाहे इत्तेहाद मुमकिन है, अमरीकी अड्डों के होते हुए। दूसरे सवाल मेरा ये है, आप इस्लामी ब्लॉक की बात की है, क्या इसमें रूस और चीन के साथ भी ब्लॉक बनना चाहिए? देखिए, हमें इस वक्त दुनिया में इलाकाई ब्लॉक बनते जा रहे हैं। मैं तो एशियाटिक फेडरेशन का भी कायल हूँ, और 300 साल कबल जब मईशत का महवर एशिया था और फिर वो कानूनी बना और पूरी सारी हमारी मईशत पर मगरब ने और यूरोप ने कब्जा किया, आज फिर दुनिया की मईशत पलटा खा रही है और मईशत का महवर एक बार फिर एशिया बनता जा रहा है, जिसकी क़यादत बहरहाल चाइना कर रहा है। तो चाइना के साथ ताल्लुकात और एशिया की वहदत उसकी क़यादत में आने वाले वक्त का तकाजा है, और हमें उस हवाले से इलाकाई ताल्लुकात पर भी नज़र रखनी चाहिए। हम आलमी क़ुव्वतों के पैरोकार बनकर इलाके में तन्हा हो जाते हैं। आज हम अफ़गानिस्तान के हवाले से भी तन्हा, इंडिया के हवाले से भी तन्हा, ईरान के हवाले से हम तन्हा हो गए, चाइना के हवाले से भी हम तन्हा हो गए, और एशिया के जो पीछे ममालिक हैं वो इंडिया के ज़ेर असर हैं, और वस्ट एशिया के जो ममालिक हैं वो फिर अफ़गानिस्तान के ज़ेर असर हैं। हमारे ज़ेर असर कौन है? हम किसके साथ डील करेंगे, किसके साथ बात करेंगे? हमें इस चीज़ से निकलना पड़ेगा और बड़े कौमी सतह की सोच हमें पैदा करनी पड़ेगी। किसी एक पार्टी या सिर्फ हुक्मरान सोच वो शायद मसले के हल काफ़ी ना हो। मौलाना साहब, आप क्या नहीं समझते कि इस वक्त पाकिस्तान दुनिया के अमन की बात कर रहा है या दुनिया में अमन की बात कर रहा है? हिंदुस्तान जो बात करता है रियासत की सतह पे, 78 साल उसने कश्मीर में दहशतगर्दी की, रियासती दहशतगर्दी, कश्मीरी आवाम उनके जुल्म सितम का निशाना बन रहा और अभी तक हैं।
और फिर इंडिया के आइन के आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद उनका ख्याल ये था कि यहाँ हिंदू आबादी आएगी, यहाँ पर एक डेमोग्राफ चेंज आएगा, लेकिन आपने देखा कि सबके बावजूद जब कश्मीर तो मोदी को तारीखी शिकस्त हुई वहाँ पर और कश्मीर आवाम ने उसको मुस्तरद कर दिया। मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान मुश्किल में है और पाकिस्तान जिस दहशतगर्दी का शिकार है, तो पाकिस्तान का तो खुद मौक़िफ़ ये है कि हमारी मुश्किल की पुष्ट पे इंडिया भी है। लिहाजा न बांग्लादेश इंडिया से मुतमैन है, न पाकिस्तान मुतमैन है, न खित्ते के दूसरे ममालिक मुतमैन है। चाइना जैसा बड़ा मुल्क भी इंडियन जारहियत से महफूज नहीं है। तो हिंदुस्तान को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और अपने शीशे में उसको अपना चेहरा देखना चाहिए। दूसरों की तरफ कीचड़ फेंकना ये शायद उन्हें जेब नहीं देता। वहाँ पर मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी है, 30 करोड़ से वहाँ मुसलमान बढ़ गया है, बहुत बड़ा रोल है वहाँ पर मुसलमान बिरादरी का। और नरेंद्र मोदी जो है वो इस्लाम और मुसलमान दुश्मनी में हद दर्जा नफ़रत की फ़िरक़ावारियत कर रहा है और नफ़रत की फ़िरक़ावारियत पर उसकी सियासत खड़ी है। तो एक इलेक्शन में उसको सज़ा मिली है, अगले इलेक्शन की तरफ वो कैसे जाएगा ये हिंदुस्तानी आवाम का मसला है। लेकिन बहरहाल वो अपनी दहशत गर्दाना जो तारुफ है उसका खित्ते में उसको ख़त्म करे ताकि खित्ते के अंदर एक पुरअमन माहौल पैदा हो। आज इंडिया की पॉलिसियों की वजह से सार्क गैर मुअस्सर हो गया है, आसियान गैर मुअस्सर हो गया है और हमें असर नौ चीन के बशमूल एक एशियाटिक फेडरेशन की तरफ जाना होगा। तो उसके लिए ज़मीन तो हमवार करनी होगी और उसमें ज़ाहिर है कि पाकिस्तान और इंडिया का बहुत बड़ा रोल होगा। अच्छा मौलाना, जिस तरह हम तमाम ममालिक के साथ दोस्ती तकरीबन हो चुके हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी है क्या और इसमें क्या तब्दीली तजवीज़ करेंगे आप? हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं, हमारी बस GHQ पॉलिसी है बस। सूबाई हुकूमत को कैसे देख रहे हैं कि सूबाई उनकी सरकार की कैसे? ये कोई यहाँ हुकूमत है ही नहीं, बस एक खिलौना है, चल रहा है। हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी नहीं चाहते हैं और हम फौज के साथ भी खड़े हैं, और हम दहशतगर्दी के खिलाफ। ये मुतज़ाद किस्म की सोचें नहीं चलती, एक वाज़ेह लाइन की तरफ हमें जाना पड़ेगा। जी, इस वक्त स्मार्ट लॉकडाउन की बात तो की जा रही है, स्मार्ट लॉकडाउन का निकाल भी होगा, लेकिन कहा जा रहा है कि मुकम्मल लॉकडाउन भी किया जा सकता है। इस वक्त सूरत हाल चल रही है आलमी सतह पर, महंगाई के बायस जो पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की आयरन कीमतें बढ़ रही है, उससे जो है आवाम की कमर तो वैसे टूट चुकी है। अगर मुकम्मल लॉकडाउन हो जाए तो क्या आवाम घरों में महसूस नहीं हो जाएगी मुकम्मल तौर पर? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, ये कोई इस मौजूदा स्मार्ट लॉक से उसका कोई ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है। 1 दिहाई से ज़्यादा हो गया है हमारी मईशत बैठ गई, डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत कहाँ चली गई। उसके मुकाबले में आप अफ़गानिस्तान को देखें, आप ईरान को देखें, आप इंडिया को देखें, आप नेपाल को देखें, आप बांग्लादेश को देखें, पूरे खित्ते में सिर्फ पाकिस्तानी मईशत है जो नीचे जा रही है। और ये कोई आज इस नई सूरत हाल की वजह से नहीं, बल्कि हमारी मुसलसल गलत पॉलिसियों के तसव्वुर के नतीजे में। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया।